کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اچھا، ایک تو یہ کہ آپ نے جو لاسٹ ویک کے لیکچرز ہیں کائنڈلی ان کے نوٹس جو ہیں وہ مجھے دکھائیں جو آپ نے بنائے ہیں, مجھے ان کے امیجز بھیجیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ صرف میرے بھیجے ہوئے امیجز کو نہیں دیکھ رہے بلکہ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں. دوسرا کوشچن نہیں کہہ رہے ہم لوگ, صرف شرار نے ایک سوال پوچھا تھا, اس کے علاوہ فضان, دونوں فضان جو ہیں اور مدود, آپ نے کوئی کوشچن نہیں کیا, صرف شہزاد نے ایک سوال کیا ہے, ناپاک نے کوئی سوال پوچھا ہے. اس کے علاوہ کچھ سینئرز بھی انوالو ہیں اس ڈسکشن میں واٹس ایپ گروپ میں, جیسے غلام منصور ہے, جیسے میں نے ان کو ایڈ کیا تھا حسن کو بھی, تو ان کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے کر سکتے ہیں. آج ہم لیکچر 4 شروع کرتے ہیں جس میں منطق کی اہمیت سے متعلق سوال ہے, اور اس میں ہم یہ بیسیکلی تو بڑا سوال ہے, سوال آتا ہے سبجیکٹو کوشچن میں. جو پہلا شارٹ کوشچن آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں منطق سے متعلق کچھ مثالیں لکھیں. تو اس کی 4 مثالیں ہیں جو انہوں نے دی ہوئی ہیں. بچوں کو ہنسانا ہو, پہیلیا پوچھنا ہو, آپس میں طنز و مزاح کا سلسلہ ہو, یا ایون کہ سنجیدہ گفتگو بھی ہو, تو اس میں بھی منطق کا بڑا بنیادی کردار ہے. تو یہ 4 مثالیں ہیں, ان میں سے کم از کم 2 مثالیں آپ لکھیں گے تو آپ کو 2 نمبر ملیں گے. منطق کی اہمیت کے حوالے سے 15 نکات ہیں. ان 15 نکات پہ اگر آپ بڑا سوال لکھیں گے اور ان 15 نکات کو ہیڈنگز دے کے آپ لکھیں گے اور ان کو بیان کریں گے, بشک مختصر بیان کریں, تو اس سے آپ کو 10 نمبر جو ملیں گے. لیکن 15 میں سے بھی ہم جب پیپر چیک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے کم از کم 10 جو ہیں وہ پوائنٹ لکھے ہوں, اور ان 10 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ اہمیت کے حامل پوائنٹ ہیں, کیا اسٹوڈنٹ نے مس تو نہیں کیے, اگر مس کیے ہیں تو پھر ہم اس کو نمبر کم دیتے ہیں. لیکن کم از کم زیادہ اہمیت کے 10 پوائنٹ آپ نے لکھے ہوں اور پوری کلیئرٹی کے ساتھ پوائنٹ اپنا نقطہ اس ہیڈنگ کے اگینسٹ اپنا نقطہ واضح کیا ہو, تو ہم اچھا لکھا ہو تو ہم 10 نمبر دے دیتے ہیں. نہیں تو روٹین میں 6, 7, 8 نمبر ملتے ہیں. یہ 10 پوائنٹ ہیں, یہ 15 پوائنٹ ہیں. اب پہلا شارٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ ایم سی کیو ہے, سوال ہے کہ جو میں نے انڈر لائن کیا ہوئے نا لفظ, یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں, اور وہ انڈر لائن کیا ہوا لفظ جو ہے نا وہ خالی جگہ ہوگی. تو پہلا ایم سی کیو ہے کہ منطق صحیح فکر کے مطالعے کا نام ہے. اس میں جو انڈر لائن منطق لفظ ہے وہ مکس ہوگا, یا وہ ملٹیپل چوائس میں جہاں اے بی سی ڈی میں جہاں بھی منطق لکھا ہوگا اس کو آپ نے اپنے جواب میں لکھنا ہے. آگے پھر منطق کی تعریف ہے کہ یہ صحیح فکر کا مطالعہ ہے. یہ سب سے شارٹ اور سب سے آسان تعریف ہے. صحیح فکر کے اصول ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. 2 اصول ہیں کہ بیان کیا گیا دیے گئے دلائل اپنی تردید نہ کریں, اور دوسری بات کہ دیے گئے دلائل یا آپ کے بولے ہوئے الفاظ حقائق کے مطابق ہوں. یہ 2 بنیادی اصول ہیں. اسی سے صحیح فکر کا اندازہ ہوتا ہے اور منطق صحیح فکر کا مطالعہ ہے. نیکسٹ جو شارٹ کوشچن ہے وہ قیاس سے متعلق ہے. قیاس بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے لاجک میں, اس کو انگلش میں سائلوجزم کہتے ہیں. یہ پورا چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 5. اس میں ہم قیاس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. قیاس دراصل ایک پروسیس ہے, ایک عمل ہے جس میں کچھ مقدمات یا کچھ جملے, مقدمات دراصل لاجک کی ٹرم ہے جو آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. مقدمات دیے جاتے ہیں, کچھ دلائل دیے جاتے ہیں, اور پھر ان دلائل میں ایک منطقی ربط دیکھا جاتا ہے, ایک لاجیکل کنیکٹیوٹی دیکھی جاتی ہے, اس کی بنیاد پہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. تو یہ عمل قیاس کہلاتا ہے, اور یہ منطق میں بڑا بنیادی اہمیت کا عمل ہے. منطق سارا کھڑا ہی اس قیاس کے عمل پہ ہے. اس کے بعد قیاس کے حوالے سے ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ قیاس منطق کی اصل روح ہے. اس میں قیاس کا لفظ یا منطق کا لفظ جو ہے وہ اسکپ ہوگا. اس کے بعد پھر مغالطے کی تعریف ہے. یہ ایک اور امپورٹنٹ ٹرم ہے جو کہ لاجک میں استعمال ہوگی, اور اس پہ پورا چیپٹر نمبر 3 ہے. چیپٹر نمبر 3 جو ہمارا لاجک میں ہے وہ ہے ہی مغالطوں پہ. تو مغالطے کی تعریف یہ ہے کہ جب آپ بے معنی استدلال کرتے ہیں
ऐसे दलाइल देते हैं जिनके मानी नहीं होते, लेकिन आप उनको बयान इस तरह से करते हैं, सूरत हाल ऐसे जनरेट करते हैं, वाकया को इस तरह से बयान करते हैं कि वो जो गलत भी है वो ठीक नजर आने लगता है, तो उसको मुगालता कहते हैं। मुगालता आप बोलने में भी पैदा कर सकते हैं, तहरीर में भी पैदा कर सकते हैं, तकरीर करते हुए भी पैदा कर सकते हैं, और आमतौर पे वकील जो है अपने मुकदमे को जीतने के लिए मुगालतों का सहारा लेते हैं। अगली हेडिंग है कि तहरीर को मुस्तनद कैसे बनाया जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे मुराद ये है कि तहरीर जो भी लिखना है आपने, जो भी लिखा हुआ है, उसको भी मुस्तनद ऐसे ही बनाया जा सकता है, ऐसे ही बनाया जा सकता है कि ये मंतक हमें सिखाती है कि जो भी उस तहरीर में मौजू है और जो भी जिस जरूरत के तहत वो लिखा जा रहा है मौजू, उसके असूल भी आपको मंतक बताएगा, और ये भी बताएगा कि आपने उस मौजू से मुतल्लिक और जरूरत के मुताबिक किस तरह से मवाद इकट्ठा करना है उस तकरीर में या उस तहरीर में। तो तहरीर को मुस्तनद भी मंतक ही के असूल बनाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि मंतक का दारोमदार दलाइल पर होता है। ये मंतक भी मिस हो सकता है इसमें और दलाइल भी मिस हो सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि ये एमसीक्यू की सूरत में आ सकता है। इसके बाद आगे फिर एमसीक्यू है कि हर कज़िया या जुमला वो किस सूरत में होता है, दलील की सूरत में होता है। इसमें कज़िया या जुमला लफ्ज़ वो मिस हो सकता है या दलील मिस हो सकता है। अब कज़िया क्या होता है, दलील क्या होती है, मुकदमा क्या होता है, ये सारी टर्म्स हैं जो आगे चल के हम तफसील से डिस्कस करेंगे। अगला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कहाँ कहाँ लॉजिक का इस्तेमाल होता है। तो उसमें वाज करते हुए आलम, लेक्चर देते हुए टीचर, अपना मुकदमा जज के सामने रखते हुए वकील, अपनी पॉलिसी और अपने मंशूर को और अपने नारों को बयान करते हुए सियासतदान, और किसी भी मौजू पे अपने ख्यालात का इजहार करता हुआ मुकर्रर, वो जब भी गुफ्तगू करेगा तो दलाइल में करेगा, और दलाइल में गुफ्तगू करते हुए वो मंतक के उन्हीं दो बुनियादी उसूलों को मद्देनजर रखेगा, तो तभी जाके उसकी बात में वजन होगा, तभी जाके कोई ऐसा नतीजा निकलेगा जिसको अक्ल मानेगी, जिसको सुनने वाला मानेगा, और वो या आपसे एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा। सो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में मंतक का इस्तेमाल हर जगह पे होता है, और हर तबका जिंदगी का शख्स जो है ना इसका इस्तेमाल करता है। छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि मंतक का मौजू क्या है और ग्रामर का मौजू क्या है। मंतक का अहम मौजू फिक्र है, ग्रामर का अहम मौजू जुबान है। एमसीक्यू है कि फिक्र हमेशा जुबान में अदा की जाती है, फिक्र इसमें मिस होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि नतक के मानी क्या है। तो नतक के मानी है बोलना। आगे फिर एमसीक्यू है कि मंतक में जुबान और फिक्र का मफहूम पाया जाता है। इसमें जो मिस होगा लफ्ज वो मंतक होगा। कि जैसे ये जो 15 हेडिंग्स हैं उन्हीं तरतीब से मैं चल रहा हूँ, उन्हीं हेडिंग्स में से मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज निकालने हैं। तो आपने उन्हीं हेडिंग्स को सामने रखते हुए देखते जाना है और आपको समझ आती जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग में ये बात हो रही है कि दलाइल, तसव्वुर, तस्दीक, फिक्र, कियास, ये सब क्या है, मंतक की टर्म्स हैं, ये मंतक की इस्लाहात हैं। तो सवाल ये आ सकता है कि इन इस्लाहात की कोई अमली शक्ल भी है। तो उसका जवाब ये है कि मैथमेटिक्स इसकी अमली शक्ल है। मैथमेटिक्स में अलजबरा, ज्योमेट्री और रियाजी के जो बेसिक एक्सियम्स हैं, जो बुनियादी असूल हैं जिन्हें हतमी से जाइयां कहते हैं, उनके लिए मटेरियल मंतक ही मुहैया करती है। अब मंतक की वो इल्म है जो कि यूलर है, एक मैथमेटिशियन है, लॉजिशियन है, उनके दायरे हैं, वो बहुत मशहूर टॉपिक है जो हम आगे करेंगे। वैन है, जॉन वैन है, उनकी डायग्राम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। या ट्रूथ टेबल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये मंतक ही मुहैया करती है मैथमेटिक्स को, और सोचने को जदीद अंदाज में बयान करने के लिए बहुत जरूरी है। तो सच के जितने भी उसूल हैं वो ट्रूथ टेबल की मदद से जो बयान किए जाते हैं, और वो ट्रूथ टेबल्स या वो जो असूलों कवानीन है वो मंतक मुहैया करती है। मंतक अपनी सारी गुफ्तगू जुबान यानी मंतक
जो है वो अपनी सारी गुफ्तगू हरूफ और अलामतों की मदद में करती है। इसके साथ साथ हरूफ और अलामतों को इस्तेमाल करते हुए ही सारी गुफ्तगू होती है। आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़ुबान भी जो है उसकी जगह भी अलामतें और हरूफ ले लेते हैं और लॉजिक जो है वो प्योर मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे सामने आती है। आखिर में दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि एक एमसीक्यूज हैं कि इस्तदलाल हमेशा दलाइल पर मबनी होता है, इसमें इस्तदलाल मिस होगा, और आखिरी एमसीक्यू है कि इस्तदलाल मंतक की रूह है, तो इसमें इस्तदलाल भी मिस हो सकता है, मंतक भी मिस हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये कि मफरूजा यानी हाइपोथेसिस क्या होता है। साइंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये टर्म भी इंडक्टिव लॉजिक के जरिए ही साइंस को मिली है। कोई भी तहकीक करनी हो तो सबसे पहले उसके लिए एक मफरूजा जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है। मफरूजा क्या होता है? ये वो जुमला होता है या ये तहकीक का वो मौजू होता है जो कि मुहक्किक जो है किसी वाक़े की हकीकत को बयान करने के लिए अपनी तरफ से फर्ज कर लेते हैं। तो फिर जब वो अपनी तरफ से वो जुमला या वो लाइन या वो मौजू फर्ज कर लेता है तो फिर उसकी तहकीक करता है और उसके ऊपर वो डाटा इकट्ठा करता है, एक्सपेरिमेंटेशन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, क्रिटिकल एनालिसिस करता है, तो नताइज हासिल करता है और फिर अपने मफरूजे के साथ उन नताइज को मैच करके देखता है कि आया मेरा फर्ज किया हुआ मौजू या मेरी फर्ज किया हुआ हाइपोथेसिस इन नताइज से मुताबिकत रखता है या नहीं रखता, इनके मुताबिक है या नहीं है। तो ये चैप्टर नंबर 7 हम लॉजिक में डिस्कस करेंगे। जब इंडक्टिव लॉजिक डिस्कस करेंगे तो मफरूजे पे बड़े अहम मौजूआत हैं जिनको हम देखेंगे। अगला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि फिर है कि रोजमर्रा जिंदगी से मिसालें दें मंतक से मुतल्लक। तो उस्ताद हो, आलम हो, वकील हो, दुकानदार हो, जज हो, गाहक हो, मुसाफिर हो, गर्ज ये कि जिंदगी में आप पहेलियां पूछ रहे हैं, आप हंसी मजाक कर रहे हैं, आप फंड कर रहे हैं, आप मजाक देख रहे हैं, आप संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं, आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर दलाइल के जरिए ही बात करना पड़ती है और मंतक के उसूलों को मद्देनजर रखते ही नताइज अखज़ करने पड़ते हैं। लिहाजा आपकी हर तरह की गुफ्तगू में मंतक इन्वॉल्व होती है, चाहे आपको उसके उसूलों का पता हो या ना पता हो। ज़हन आपका अक्ल को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल उन्हीं खतूत पर नेचुरली फितरती तौर पर अमल करता है जिन उसूलों को आगे चल के फिलोसफर्स ने और लॉजिशियंस ने एक बाकायदा इल्म की शक्ल दी है जिसे हम लॉजिक कहते हैं। आखिर में फलसफे के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी स्पिरिट ये है कि इसमें कुछ भी हतमी नहीं होता। फलसफे में कुछ भी कहा गया आगे चल के जमाने के गुजरने के साथ मजीद तहकीक के बाद पहले से कहा गया रद्द हो जाता है और उसकी जगह कोई और नया आइडिया या नया तसव्वुर या नया फलसफा उसकी जगह ले लेता है। तो फलसफे में कुछ भी कहा गया हतमी नहीं होता। ये एक जदलियाती अमल है, एक डायलैक्टिकल प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली कहे गए को, सोचे गए को इवॉल्व करता रहता है, उसे एक बेहतर शक्ल देता रहता है। लिहाजा फलसफे में कुछ भी हतमी नहीं है। आखिर में एहतमाल का जिक्र है, इम्कान और एहतमाल। तो उसमें कहा गया है कि तहकीकी अंदाज में जब मफरूजा कायम किया जाता है तो उसमें उस मफरूजे के सही या गलत होने के चांसेस या इम्कानात या पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो ठीक भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, वो कैटेगोरिकली गलत भी हो सकता है, वो कैटेगोरिकली ठीक भी हो सकता है। कहा गया, फर्ज किया गया कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक भी हो सकता है, बिल्कुल गलत भी हो सकता है। लिहाजा इम्कान की जो प्रोबेबिलिटी का चांस होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो तहकीक के अमल में और मफरूजे की तश्कील के अमल में जो है ना उसका अपनी अहमियत है और वो भी मंतक की अहमियत के हवाले से एक अहम नुक्ता है जिसको हमने बयान किया है। ये मंतक की अहमियत के हवाले से बड़ा सवाल था जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। आप कोशिश करें कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अपने लफ्जों में लिखें। इनमें जो लफ्ज समझ नहीं आते, जो कॉन्सेप्ट या टर्म समझ नहीं आती, जो हेडिंग समझ नहीं आई, जो भी आपके जहन में है वो काइंडली मुझे व्हाट्सएप करें ताकि इसमें मजीद डिस्कशन कर सकें। ये आज का लेक्चर है। इसका जो यूट्यूब वाला वर्जन है वो मैं इंशाल्लाह ताला आज अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये मैंने आपकी बेहतरी के लिए व्हाट्सएप चैट में आपको सारा